Hi dear students, in this class we are discussing about the trigonometric values. How to remember the trigonometric values. There are two methods. One is a direct method, you can remember sine only and you can write cos, tan, all trigonometric constant. Or sir, how to remember that sine only. So that is the only we are discussing about hand trick method to remember the trigonometric values. First you have to do with the sine only, clear? So how to do with the sine? So first you have to remember the square root of divided by 4, 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 1 2 3 4. And because why you are taking 5 times, so it is a 0 degree का, ये वाला 30 degree का, ये वाला 45 degree का, ये value 60 degree, ये value 90 degree. So now you have to just consider these are the our degrees, clear? You can like this also, you can take like this. So it is 0 degree, a 30 degree, ये value कौन सा 45 degree, ये value कौन सा 60 degree, ये value कौन सा 90 degree, clear? So sir, what is here in this here, what you need to take? And why are sir dividing by 4? So whenever you are finding the 0, 30 degree, so it are in the unit circle, means in unit circle the circumference of this will be a 2 5. So in circle का 2 5 में अंदर ही आना चाहिए ना. So because of we are taking only divide by 4, divide by 4 क्या करते हैं हमको allows to gives the unit circle. That you can see here the reason. So why divided by 4? This is also a one question आया था comment box में. So in our regular classes, so that is nothing but why divide by 4. This is also best question. And to the number 4 used as the denominator in the fraction because the unit circle from which these values are derived has a circumference of 2 5 and which is approximately 6.28, and dividing 4 allows to the represent different angles within a unit circle. So different angles बोले तो यही है ना up to 90 degree. So which are the related to our 5 fingers. What are our 5 fingers are there in our hand? So that are 1 2 3 4 5. You can consider this also 0. ऐसा भी चलता है आप फॉर्म ऑफ योर हैंड. सो 0 डिग्री, ये वैल्यू 30 डिग्री, ये वैल्यू 45 डिग्री, ये वैल्यू 60 डिग्री, ये वैल्यू 90 डिग्री. आप इधर क्या लेना है सर? दीज आर द रिमेनिंग फिंगर्स. तो आप एक फिंगर कंसिडर किया तो इधर पीछे रिमेनिंग फिंगर कितना रहेगा वो वैल्यू फाइंड करना है. तो अभी इधर देखो 0 डिग्री के लिए मैं करता हूं. This is 0 degree, clear? So now this is 0 degree. So how many fingers are remaining for this finger? So remaining fingers है क्या इसका? है ही नहीं fingers. तो एक ही फिंगर है तो फिंगर्स है ही नहीं है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा, क्लियर? सो एंड व्हाट अबाउट 30 डिग्री सर? ये वाला 30 डिग्री है तो हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर बिहाइंड द 130 डिग्री, क्लियर? डोंट कंसीडर अबाउट दिस टू. सो हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर? सो ओनली वन फिंगर इज देयर. जस्ट टेक हियर 1. एंड नाउ द this one 45 डिग्री. सो 45 डिग्री कंसीडर किया तो कितने फिंगर्स बाकी है बाबा? 2 है. तो आप चल सकते हैं ना 3 4. सो अभी ए वाला कंसीडर किया तो कितना फिंगर्स है? 1 2 3. तो इधर आप 3 लिख सकते हैं. अभी इधर देखो आप, ये वाला है ना, ये वाला कंसीडर किया तो कितना फिंगर्स बाकी है? 90 डिग्री को कितना फिंगर्स रिमेनिंग है? 4 फिंगर्स. तो इधर 4 लिखना पड़ेगा. अभी दिस इज द ओनली हैंड ट्रिक मेथड टू रिमेंबर द साइन. दिस इज ओनली रिलेटेड टू साइन, क्लियर? सो नाउ 0 by 4 क्या हो जाएगा? 0. एंड रूट ऑफ 1 by 4 ये आपको पता है 4 का क्या आएगा? रूट 5 of 4 दैट इज 1 by 2 30 डिग्री. अभी 2 1 जा 2 2 जा, ये क्या हो जाएगा? 1 by 2. इट इज नथिंग बट 1 by रूट 2 हो जाएगा. ये वाला तो क्या हो जाएगा? रूट 3 हो जाएगा. 4 का रूट बाहर आए तो 2 हो जाएगा. दोनों कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा? आपका आंसर 1 हो जाएगा. अभी आपको ये याद कर सकते हैं ना. ये याद करने के लिए क्या करना? 0 1 by 2 रूट 1 1 by रूट 2 रूट 3 by 2 1. That's only you need to write here. After finding these values, you have to write here. What are the values? Please tell me. So the values are 0 को 0 आएगा, 30 को 1 by 2 आएगा, 45 को 1 by रूट 2 आएगा, 60 को रूट 3 by 2 आएगा, 90 को 1 आएगा. सर आप साइन को लिख दिया तो कॉस को कैसे लिखना? कॉस को क्या करना? इधर से उल्टा लिखना. उल्टा बोले तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 30 हो जाएगा. बोले तो मिडल तो सेम ही रहता है. ये दोनों इधर लिखना, ये दोनों इधर लिखना. ऐसा भी रिमेंबर करो और पूरा इधर से इधर स्टार्ट कर दीजिए. सो स्टार्ट करने के बाद क्या हो जाएगा? देखो ये वैल्यू 1 इधर आएगा, रूट 3 by 2 इधर आएगा, 1 by रूट 2 इधर आएगा, 1 by 2 इधर आएगा, लास्ट वैल्यू 0 इधर आएगा.
क्लियर है सर? साइन कॉस मिले तो टैन कैसे फाइंड करना? अरे बाबा टैन का फॉर्मूला क्या है? टैन इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। दिस डिवाइडेड बाय दिस किया तो क्या हो जाएगा? टैन थीटा मिलेगा। टैन थीटा का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? कॉट थीटा, बिकॉज टेंजेंट का को लिया तो को टेंजेंट, टैन का को लिया तो कोसाइन, सेक का को लिया तो कोसेकेंड, एंड रेसिप्रोकल यू नीड टू रिमेंबर दिस रेसिप्रोकल। एंड नाउ टैन थीटा का क्या हो जाएगा? 0/1, 0 by anything is what? 0। and now 1/2 √3/2, 2 कैंसल, ये क्या हो जाएगा? आपको डाउट है तो देखो इधर 1/2 √3/2, 2 कैंसल 1/√3। इट इज क्लियर सर? ये वैल्यू क्या हो जाएगा? √3/2 होल डिवाइडेड बाय 1/2, 2 कैंसल √3 आएगा। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√3। ये दोनों सेम है ना, तो आंसर क्या आएगा? 1। ये दोनों 2 कैंसिल होने के बाद 2, 1/0 डिनोमिनेटर में 0 आए तो डिफाइंड है क्या? इट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? इट इज नॉट डिफाइंड। आपको बता देना मैं भाई, यही वैल्यू क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। ये वैल्यू इधर ले लो कॉट के लिए, नॉट डिफाइंड। ये √3 इधर ले लो, क्लियर है? 1 तो उधर ही रहेगा, ये 1/√3 इधर आएगा, वो लास्ट वैल्यू इधर आएगा। क्लियर सर? ये तो फाइंड किया सेक कोसेक का। सेक किसका रेसिप्रोकल है बाबा? सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा लिख सकते। इट मींस व्हाट? इधर क्या है ना, इसको उल्टा कर दीजिए आप बस, सेक थीटा को उल्टा। तो उल्टा वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/1 किया तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। √3/2 को उल्टा किया तो क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 को उल्टा किया तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। एंड 1/2 को 2, एंड 0 को डिनोमिनेटर में है तो क्या हो जाएगा? 0 डिनोमिनेटर में है तो नॉट डिफाइंड आएगा। क्लियर है? सो नाउ अभी ये तो आपको सेक थीटा आया। सर कोसेक का भी उल्टा करना पड़ेगा क्या साइन का? यस। सो साइन का भी उल्टा किया तो भी मिलता है, और यू कैन राइट हियर से इधर, इसका उल्टा कर दो ना, इसका ये उल्टा है तो इसका ये उल्टा ही आएगा। सो इसका इधर आएगा नॉट डिफाइंड 2√2, ये वैल्यू क्या आएगा? 2/√3, ये वैल्यू 1। I hope clear. You can remember this all formula. Just remember this one. You can write all formulas. In higher studies 11th and 12th you should be remember 180 degree, 270 degree, 150 degree and 360 degree, all values. Clear? We'll discuss another video on this also, and I hope it is clear. And आपका डाउट था ना, one student asked the question that is pi divided by 4. You can just note it down. I hope it is clear. Thank you.